any between. Isha PC and Isha Mule. Guten Abend. Yes, sir. Yes, sir. Guten Abend, sir. Okay. So I am sharing this. See, these are the preposition imer mit dative. Prepositions always with dative form, right? And the dative form of prepositions that we have seen, like these are the temporal, and before the temporal, we have also seen the local prepositions. And now, if you see, look at this particular, prepositions with the articles, right? So generally, by, bei, right? What is the meaning of by? What is the meaning of by? Ria, can you tell? Mm, Okay. Anyone? This by, bei. By means at. By means at. So generally, what we can say, we are working at college. So I am working at college, or I am going, or I am staying at uh, the hostel, like that. Okay, so this is at, right? So at. And dem, we know it. Dem means what? the Huh? the Yeah, the that is the article, right? And it is in dative form, right? So if you combine this by and dem, you will get bime. So like foam, phone und dem, foam, right? Phone means what? From or off, off or from. So it depends upon the context, right? We can use both these variables, right? Or preposition, sorry. Then zudem, zoom, right? So generally zoom sn for the lunch, right? Zoom is actually two, right? Ich bin zu Hause. I am at home. Now, if I want to say jetzt means now. Jetzt bin ich zu Hause, right? What I'm telling now, I am at home. Jetzt ich bin zu Hause nahi. Jetzt bin ich. Bin is a verb, right? Bin is a verb, and it should be at the second place. So how I'm making the sentence, please make sure of it. Jetzt bin ich zu Hause. Now I am at home. You got it? So this is very important, right? Now this at and this zoom sn for the lunch. See, now in English we cannot say I am at the lunch, right? So I am going at the lunch. No, I am going for the lunch, right? So again I'm saying, right, you do not compare the English prepositions with these prepositions, right? Even though the 80% meaning they are same, 80% we can say they are same, but 20% they are altogether different, right? Zoom is two. So here zoom, if I'm taking zoom sn, so in English you cannot say na, I am going ich gehe zoom sn, I am going for the lunch, right? Actually it is like this. In English it is for the lunch, but here we know it is for what? The for it is für, right? Actually the preposition is für, but I cannot say in German, right? Ich gehe für dem Essen. No, I gehe for the lunch. So जैसा इंग्लिश में है वैसा का वैसा मैं ट्रांसलेट करने का कोशिश किया तो देर इज अ प्रॉब्लम. So don't go for it. Don't try to do like this, right? I'm again saying 80% you can match, but 20% not at all. But generally, what I'm telling you, think in German, German into German altogether, right? Do not think English into German. हम लोग इंग्लिश से जर्मन नहीं सीख रहे. इसके लिए मैं बीच में मराठी में बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, राइट? ओके, सो ये इट्स नॉट, इट्स ऑल टुगेदर न्यू लैंग्वेज, और ये नई लैंग्वेज है, तो हम लोग लैंग्वेज से लैंग्वेज में से ही मैच करने गए, राइट? सो थिंक लाइक दैट. जू डेयर, जूर. नाउ इफ आई एम सेइंग डी यूनिवर्सिटेट, राइट? डी यूनिवर्सिटेट. सो इफ आई वांट टू से आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी, so how I will actually ये जर्मन में how I will do it? Ich gehe zur Universität. Now here in this context it is two, right? I am going to the university. Here I cannot translate like I am going for the university. No, right? So it depends upon the context. Sentence बघा.
sentence, if you're talking about a sentence, so depending upon the sentence, depending upon the context kya hai, right, what they are trying to say, right, then you can imagine, then you can focus, what type of prepositions you are going to put it. German into German, think on German, and then you put the German prepositions. Do not think in English and then you try to put, convert from English to German. And that's why, if you can see, let's see. Now let's try for the Google Translator. Let's see it. If it is giving good results, then it's fine. But I'm I'm much more worrying about it, because so many things that I have seen it in Google Translator do not depend upon Google Translator at all, right? Because you may get the uh, you know uh, incorrect results. So let's check it out. Uh, English to German. Let's see. Let's see. Let's try for this. Okay. I am going to university. Yes. Now it is saying that ich gehe zur Universität. I am going to university, right? So I am going now. Let's say for the lunch. Yes. Now it's correct, right? Ich gehe zum Mittagessen. Mittagessen means lunch. Mittag means what? Noon. Mittag means noon. Actually, Essen means what? It may be dinner also, na? It may be dinner also. So Abendessen. Abendessen म्हणजे dinner. रात्रीचं dinner, right? So if I'm saying ich gehe for the dinner. Abendessen, right? Abend means what? Evening. So evening meals म्हणजे काय? Dinner. Mittagessen means what? Noon meals means afternoon. That is lunch. But Zoom it is taking now. It's Zoom, right? See, many things they have now improved. Many things they have not improved. Previously, मुझे मुझे याद है कि मैं हमेशा जैसे अगर गूगल ट्रांसलेटर यूज करता था तभी देयर वाज समथिंग लाइक दिस फॉर्म इज फ्यूर. Now if a form is few relate, let's see, you can just see, I am going for, so you can just see few. Form is few, right? What is the context क्या है? I am going for lunch. Lunch असेल तर लगेच दुसरा येणार, right? I am going for the lunch, right? So it's like that. Okay, so please try to understand this fact. Okay, now it's okay, so don't worry. So now, okay, zoom and zoom, picture clear. Now let's talk about the Übung. What is the meaning of Übung? Exercise. Übung means exercise, right? De-Übung. De-Übung, exercise, right? So I think whatever I'm telling, right, you are taking in your notebook, right? So the idea will get clear to you. Obviously, whatever we are discussing over here, everything is going to be recorded, and I'm going to upload this video in our YouTube channel, so you can watch it at anytime whenever you will get time. You please again go through it. Let's see. Robert Gehet 8 Uhr aus, right? Just say it. Robert Gehet. Robert goes. What is Anyone? Please, you can unmute. You can unmute, right? Means at. At. Okay. 8 Uhr. Uhr means o'clock, right? O'clock. Aus. Aus means what? From. Aus means from, right? And house. House means what? Das house. So now I should remember the noun article, whether it is masculine, feminine or neutral. हे मला माहित असलं पाहिजे, ये मुझे आना चाहिए, राइट? अगर मुझे मालूम नहीं है, राइट, व्हाट इज द masculine, feminine, neutral for the noun, then it's very difficult for me to whatever I have to put it over here. Now aus always take dative form. Now what happened, generally whatever we have discussed about this, everything with dative only. So ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम लोग को दिमाग बाजू में रख के मुझे खाली डाटिव में डालने का है. But what happens, what happened in case of the, let's say, maximum bowen exam, there they have not written that की fill in the blanks मध्ये dative form टाका, right? Next fill in the blanks मध्ये accusative डालो, ऐसा बोला नहीं जाता है, right? So there it is very difficult for us,
So difficult करने का ही क्यों, right? It's very simple one, you know. Aus means what? From, and from aus always take dative form. And why it is dative? Because aus is nothing but from the place. It's a position. It's not an action. It's a position. मैं ये position से आ रहा हूँ. Ich komme aus London. I am coming from London. Right? Ich komme aus dem Haus. Das dem. Das dem. Dem is in dative form. I am coming from the home. Home is a place. वो प्लेस से मैं आ रहा हूँ. So वो प्लेस क्या है? Place is always somebody has come. Yes, place is always a position. वो position और dative अपना rule ध्यान में रखने का है. Action accusative position dative. Right? So again I'm repeating, Robert Gehet, right? 8 Uhr at 8 o'clock aus dem Haus. Does dem. Now next, er won't. He stays. He stays means again it's position. He stays. Meet. Meet means what? With. Meet means with. Now friend. ये फ्रेंड मस्कुलिन है का फीमेनाइन है? रिया, कैन यू टेल? Is it masculine or feminine? Feminine. Feminine कैसा है ना? Feminine यानी क्या? Fruendin. Fruendin रहते तो feminine ना. It is masculine friend, male friend. Are you getting? Right. So masculine friend है तो definitely it's what? Ein Freund. Ein Freund यानी der Freund है ना? Der Freund. So ein Freund. So if I convert this ein, einen, einem, correct? यानी sein, seinen and Zainam, em, Zainam. So कैसा आएगा अभी? Air won't meet Zainam friend Hans. Hans is the name of the person, friend. Zusammen. Zusammen means together. Together. How you will translate actually? He stays with his friend Hans together. वो उसके फ्रेंड के साथ, हांस फ्रेंड के साथ, राइट राइट टुगेदर रहता है. इट्स लाइक दैट. ओके, हिज फ्रेंड. सी फ्रेंडीन, अगर इधर फ्रेंडीन अगर है दैट मीन इट्स फीमेनाइन. अगर फीमेनाइन है तो डी डी डेयर. तो जाइन जाइन जाइनेर. तो कैसे आता है? एयर वोंट मीट जाइनेर फ्रेंड. और हांस के बजाय वो कोई लेडी का नाम रहेगा, गर्ल का नाम रहेगा, राइट? लाइक दैट. ओके, सो यू सी द नाउन. कौन सा है नाउन? एंड उसका डेर डेडस आर्टिकल. नाउ लेट्स सी. Ich gehe heute. Heute means today. Ich gehe heute zu. Zu means to. Schwester. Now Schwester यानी क्या? Isha, can you tell what is Schwester? Sister. Sister. Very nice. Sister. Sister यानी क्या? Feminine. यानी डी स्वेस्टर है ना? डी स्वेस्टर. सी हम लोग को फटाक से फीमेनाइन मस्कुलिन न्यूट्रल ढूंढने का है. तो डी स्वेस्टर. चलो इतना तो मालूम पड़ा. नाउ जू. जू मीन्स टू. इट टेक्स व्हाट? डाटिव फॉर्म. सो डी स्वेस्टर, डी स्वेस्टर, डेर स्वेस्टर. नाउ आइन और माइन रहेगा तो माइन, माइन, माइनेर. तो इधर क्या आएगा? माइनेर. राइट. Ich gehe heute zu meiner Schwester. Today, right? इंग्लिश मध्ये कसं म्हणणार? टुडे आय गो टू माय सिस्टर. टू माय सिस्टर मी सिस्टर प्लेस, लाइक दैट. ओके, लेकिन जर्मन मध्ये कसं आहे? झू मायनेर स्वेस्टर, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इधर अगर हम लोग ने गलती से माइनर के बजाय माइनन, माइनम, माइनर कुछ भी डाला, देन इट इज अ रॉन्ग जर्मन, राइट? इसके लिए ये जो भी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से लिखने का है. यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन, राइट, इन योर नोटबुक whenever you will get time. So you can take a snap of it. आप एक तो प्रिंट स्क्रीन ले लो, otherwise you can see again the video and you can have go through it and write down this exercise, right?
Now fourth one that I will solve, and rest of this other you solve it. Kommt der Brief, right? So it's like a verb is there, right? And the if the sentence starts with the verb, that means there is some question sentence. That is a question, right? Kommt der Brief. Der Brief means the letter. The letter. Does the letter come? ऐसा हो गया. Kommt der Brief. Does the letter come? Phone. See phone. Phone यानी क्या? From. Phone यानी from. Now Großmutter. What is Großmutter? Grandmother. So it is D. D Großmutter. So D है तो अगेन ये आइन जैसा चलने का आइन आइन आइनेर. अभी डाइन है, डाइन मीन्स यूअर, सो डाइन डाइन डाइनेर, राइट. सो कैसा आएगा? कोम्ट डेर ब्रीफ फोन डाइनियर ग्रोसमुटेर, डाइनियर ग्रोसमुटेर, ऐसा ही आएगा. डज द लेटर कम फ्रॉम यूर ग्रैंड मदर, लाइक दैट. ओके, let's go ahead also, right? Let's go ahead. Let us see. Ish been shown. Shown means already. Already there are two showns. Okay, there are two showns. ये एक है shown और दूसरा ओ umlaut n. ओ umlaut n, दोनों में फर्क क्या है? This shown means already. और शियोन, शियोन प्रोनाउंस भी कैसे क्या, देखो शोन नहीं शियोन, पहले कैसा है? शोन, शोन शियोन. शियोन मीन्स ब्यूटीफुल, right? Do be shown, you are beautiful, right? Like that. Okay, so shown und this shown. Okay, please see the difference. Okay, I am already zeit. Zeit means what? Since. Woke, woke means weak. Now woke dare d does क्या है? D woke. So D woke है, zeit takes dative form. So eine einer again. So ich bin schon seit einer Woche here. I am already here since a week. Since a week. This kind of translation you can do it. थोड़ा आगे पीछे करवा लो इंग्लिश में बराबर से तो हो जाएगा, right? So now if you go through this, and my suggestion, not only you solve this exercise but also you try to translate into correct English. Translate into correct English. I am not saying कि whatever the sentence is given in German language, same put it as it is. यानी अगर ऐसा रहेगा कॉम डेयर ब्रीफ फोन डाइनर ग्रोस में टेर, तुम्हें इंग्लिश में comes the brief, comes the letter from your grandmother, ऐसा करूंगा क्या? नो, ये और अभी रॉन्ग इंग्लिश हो गया ना. तो रॉन्ग इंग्लिश नहीं लिखने का है ना, रॉन्ग जर्मन बोलने का है, राइट? अगर ट्रांसलेट बोला है, ट्रांसलेट किसके लिए करने का है? इफ आई एम सेइंग थिंक जर्मन इनटू जर्मन एंड व्हाई वी हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश, राइट? तो जनरल एक्चुअली हम लोग स्टार्टिंग है ना हम लोग का, तो स्टार्टिंग है तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि भाई डेयर ब्रीफ यानी क्या, लेटर. तो टू इंक्रीज द वोकैबुलरी एटलीस्ट वी नो इट ना. तो एक्चुअली करेक्ट इंग्लिश में कैसा फॉर्म करोगे आप? डज द लेटर कम फ्रॉम योर ग्रैंड मदर, ये करेक्ट इंग्लिश है. तो डज यानी इधर डज किधर आ गया, ऐसा नहीं है ना. देयर इज नो डज ओवर हियर, बट कॉम्ड इज इटसेल्फ इज अ प्रेजेंट टेंस. जर्मन में एक ही प्रेजेंट टेंस है, राइट? सो इज द लेटर कमिंग, ये भी हो सकता है. डज द लेटर कम, ये भी हो सकता है, राइट? हैज द लेटर बीन कमिंग, राइट? फ्रॉम यानी ये आ रहा था, ऐसा. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस. सो प्रेजेंट टेंस है कि जर्मन में. सो ट्रांसलेशन, इट यू कैन डू इट ट्रांसलेशन इन इंग्लिश वॉट एवर यू वांट टू डू, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द प्रीवियस कंटेंट. अगर आप स्टोरी रीड कर रहे हो, स्टोरी रीड कर रहे हो तो स्टोरी के ये लाइन के आगे क्या है, उसके ये लाइन के बाद में क्या है. सो व्हाट इज देयर बिफोर एंड व्हाट इज देयर आफ्टर. तो उसके हिसाब से हम लोग को बीच का जो मेन लाइन जो है, दैट दैट टाइप ऑफ ट्रांसलेशन वी हैव टू डू इट. सो इंग्लिश में डिफरेंट है, जर्मन में डिफरेंट है, राइट? सो आई थिंक यू गॉट इट. कैन यू एबल टू सॉल्व दिस नाउ, एक्सरसाइज ऑफ दिस? यस, साक्षी, ईशा, कोई कोई भी बोलो. ईशा? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो आई थिंक यू सॉल्व इट. सी, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, you can WhatsApp me. Otherwise, in the next lecture, we will solve it.
फटाफट सॉल्व करेंगे, रीडिंग करूंगा मैं, आई विल जस्ट टेल, राइट, नंबर 5 रिया यू स्टार्ट, नंबर 6 ईशा, नंबर 7 नेक्स्ट ईशा, सो लाइक दैट, सो ऐसा हम लोग वी विल डू इट लाइक दिस एक्सरसाइज सो दैट इट विल बी क्लियर, राइट। सी इधर कैसा है, जू डी है, डी बानोफ, राइट, तो डी डी है, तो डू नॉट सी कि इसमें कुछ तो कट हो गया है, क्या कट नहीं हो गया, इट्स ओनली डी, डी है इधर। तो डी यानी क्या, डी, सो यू हैव टू थिंक अबाउट बानोफ डेयर है क्या, डी है क्या, डस है, तो डेयर बानोफ है तो डेयर देन देम, ऐसा लिखने का है, तो और क्या लिखने का है, राइट, सो लाइक दैट। एंड मेनी ऑफ द वर्ब्स और मेनी ऑफ द वर्ब्स एंड as well as the many of the nouns that we have already taken, right, in the previous lectures. You can go through the previous also. फोर लेसुंग यानी क्या, लेक्चर, राइट। गेल्ड शाइन, सो हियर थोड़ा सा अलग है, गेल्ड शाइन मीन्स, राइट, मनी, और शाइन यानी कॉइन, कॉइन, एक्चुअली गेल्ड यानी क्या, मनी, पर गेल्ड शाइन यानी मनी। एंड गेल्ड स्टूकर इधर नहीं है, गेल्ड स्टूकर मीन्स नोट, right, these are some of the currency things, right. Geld means money, right, I will write here, geld means money, geld shine, CHEIN, geld shine means coin, and geld stuker, stuker umlaut hai, stuker means note, okay, so it may be in euro. Euro is the currency of Deutschland, Germany, right? Ours is rupees, right? So इसके ट्रांसलेशन के लिए, अदरवाइज जैसे कंटेक्स्ट में जैसे आगे आगे हम लोग बढ़ेंगे वैसे आपको मालूम ही पड़ेगा कि अलग अलग वोकेबुलरी यू विल डेफिनेटली गेट इम्प्रूव, लेकिन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो अपोजिटिव, नाउ हियर वी नो दैट दिस एक्सरसाइज इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, डिपेंड्स अपॉन द अपोजिटिव, यानी इधर जो भी कुछ आएगा आपको अपोजिटिव में ही थिंक करने का है। Again I am repeating, in the context or while building a sentence, while communicating with each other, we have to think कौन सा प्रेपोजिशन लिया है, उसके हिसाब से कौन सा हम लोग को डाटिव डालने का है, ऑपोजिटिव डालने का है, जेनिटिव डालने का है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इट डिपेंड्स अपॉन आवर कंटेक्स्ट, राइट। इधर एक्सरसाइज दिया है तो इट्स में सिंपल फॉर यू, राइट, वी नो इट नाउ, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग को ऑपोजिटिव डालने का है, सो लेट्स डू इट। इधर हम लोग ये देखते हैं, अगेन आई विल सॉल्व 1 or 2 एंड रिमेनिंग यू कैन सॉल्व इट। Let's start with this first. Dursh, dursh. So SB लाया, so बोलने का भी ऐसे dursh. Dursh का मतलब है through, right? Through the garden. इस गेह dursh, right? और dursh garden और dursh den garden आएगा, den because der garden है ना, der garden den garden. So इस गेह dursh den garden. I am going through the garden. अभी मैं देखो मैंने फटाक से एक सेंटेंस बनाया, बट आई रिकलेक्ट कि गार्टन इज फॉर, गार्टन डस नहीं है, गार्टन डेयर है, तो उसका ऑपोजिटिव फॉर्म डेन है, सो डेन ही आना चाहिए। सो इज गेह डूर्स डेन गार्टन, ऐसा ही बोलना चाहिए, राइट, लाइक दैट। फ्यूरडस फॉर द, उमडस, उमडस, उम का मतलब है भी है अराउंड, उम हियर इट इज नॉट अ टेम्पोरल टाइमिंग रिलेटेड प्रेपोजिशन नहीं है। ऐसा मुझे कैसे लगा, बिकॉज उसके आगे आर्टिकल है ना, अगर उसके आगे आर्टिकल ही नहीं रहता था सो देयर वुड आई बी व्हाट 8 o'clock 9 o'clock ऐसा रहता था ना, सो उम का मतलब होता था एट। नाउ इधर उम का मतलब क्या है, अराउंड, अराउंड, ओके, व्हाई प्रेपोजिशन है इसके लिए। लेट्स सी, heute gehe ich, right, see the second place position, verb position. See, you may wonder why I'm repeating again and again. Second verb, second place should be verb, second place should be verb. ना इट्स रिपीटेशन में इसके लिए कर रहा हूँ कि भाई हम लोग को आदत लगना चाहिए, राइट। सो वी आर टॉकिंग टू अवर से, हम लोग को आदत लगना चाहिए भाई, सेकंड प्लेस वर्ब, सेकंड प्लेस वर्ब। तो जनरली व्हेन एवर यू विल स्पीक इन जर्मन लैंग्वेज, डेफिनेटली यू विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। और वर्ब अगर आगे पीछे लगा तो आपको ही कुछ तो इट विल साउंड अ रॉन्ग थिंग फॉर यू, आपको इमीडिएटली रॉन्ग दिखा, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया वेयर इज अ वर्ब, वर्ब का पोजीशन किधर से हटा है क्या, राइट, लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई वर्ब पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी इट, heute gehe ich, टुडे आई गो,
I go, I am going. Now I cannot say I go because I have to read the sentence completely and then I will say spazieren gehen is the verb. Gehen is not only the verb. What is the verb? Spazieren gehen. राइट, इट्स अ सेपरेबल वर्ब. भी सेपरेबल वर्ब का भी एक्सरसाइज इसके बाद में इमीडिएटली हम लोग लेने वाले हैं, सो दैट द आइडिया विल गेट क्लियर टू यू कि ये सेपरेबल वर्ब है वो आया किधर से और कैसे कॉन्जुगेट करने का. राइट, सो heute gehe ich ohne. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओनर? विदाउट. विदाउट. और ओनो के ऑपोजिट क्या हो गया? मिट. ओनो का ऑपोजिट मिट. मिट का मतलब है विथ, ओनो का मतलब है विदाउट. राइट, सो heute gehe ich ohne फ्रेंड. अगेन पिछले वाला ही फ्रेंड आ गया, नहीं मस्कुलिन फ्रेंड आ गया. राइट, सो हियर आई नो इट. फ्रेंड मीन्स व्हाट? आइन. आइन, आइनन, आइनम. तो इधर क्या आएगा? आइनन. आइनन का और आइनन के बजाय आएगा माइनन. माइनन यानी माय. दीज आर पॉजिटिव प्रोनाउन ना. इश, माइन, डू, डाइन पॉजिटिव प्रोनाउन है. आई, माय, यू, यूवर्स, ही, हिज, शी, हर, like that. Okay, it's like that. So ohne meinen Freund spazieren. meinen आएगा en. meinem कभी कभी नहीं आएगा इधर because ohne verb is there and there is the action. So generally how you will translate? Today I go for a walk without my friend. Okay, so it makes sense. Next, wir fahren, we are traveling schnell. Schnell यानी fast. We are traveling fast. Durch means through. Now start. Start means for city, and I know what is a is it? It is what? It is feminine. D start. और D का opposite form क्या है? D. So today we are going fast through the city. Durch D start. D start है. Dare start नहीं आएगा. Right, यानी dative form नहीं आएगा. Opposite form. Next, Robert Gehet dash house. House is was das house. So das accusative form is also das. So Robert Gehet das house. Robert Gate goes at his house. Right, यानी उसके आगे पीछे घूम रहा है, हाउस के आजू बाजू में, अराउंड द हाउस, ऐसा यू कैन से like that. Okay, so I think next part you can do it. Definitely you can have this. इधर क्या है? ग्लास, बियर, आर, इतना ही कट हो गया. एंड रोबोट फेयर्ड मिट, MIT है, MIT मिट. मिट झाइनम फाराड गेगेन डैश आउटो. राइट, सो इवन दो इट्स अ मिट झाइनम है, दो प्रेपोजिशन आ गया एक ही इसके अंदर. राइट, मैं आठवां आपको बोलता हूँ. रोबोट फेयर्ड, रोबोट ट्रेवल्स, मिट झाइनम फाराड विथ हिज बाइसिकल, गेगेन means against. Right, das auto, das auto, das auto. So ein, so इधर क्या आएगा? डैश, यानी कुछ भी नहीं आएगा, ओनली आइन. आइन, आइन, आइनम. राइट, तो ये आपको चार्ट जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था आर्टिकल का, वो चार्ट ध्यान में रखो. हाँ, राइट, डस डस, सो आइन, आइन. तो इधर भी आइन ही आएगा. वाई? बिकॉज इवन दो इट्स कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ऑपोजिटिव फॉर्म में है. तो हम लोग जर्मन में ऐसे नहीं बोलते रोबोट फेयर्ड मिट झाइनम फाराड गेगेन ऑपोजिटिव आइन ऑटो, ऐसा नहीं. आर यू गेटिंग? गेगेन आइन ऑटो ओनली. राइट, इट अंडरस्टूड, इट अंडरस्टूड. जो सामने वाला जर्मन बंदा है, जर्मन जो लोग सुनने वाले हैं आपका, उनको मालूम है ना कि भाई आपने ये ऑपोजिटिव में ही डाला है, प्रॉपर है. यू आर स्पीकिंग वेरी करेक्ट जर्मन. देर इज नो एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक. राइट, लेकिन आइन ऑटो, आइनम ऑटो, ऐसा कुछ तो आपने बोला तो रॉन्ग. तो आपको कुछ नहीं जर्मन आता है, ऐसा हो गया. राइट, सो जैसे जैसे मी मराठीत कसं बोललो, ती पंखा बंद कर. राइट, ते खिड़की चाल ओपन कर. तो कैसा है, नहीं जो सामने वाला महाराष्ट्रियन रहेगा वो क्या बोलेगा? सर, व्हाट यू आर स्पीकिंग यू नो मराठी लैंग्वेज, इट्स नॉट करेक्ट. पंखा तो पंखा है, पंखा इज मस्क्यूलाइन है, सो यू कैन से यू नो तो पंखा. और द विंडो इज, ती खिड़की इज अ फेमिनाइन. Right, so like that you will, and you will laugh also because you are speaking incorrect Marathi. Like that the German people, उसके सामने अगर आइन ऑटो, आइनन ऑटो, आइना ऑटो, ऐसा कुछ भी आपने बोला तो वो हंसेगा ना. वो क्या बोलेगा? अरे कुछ तो गड़बड़ है, यानी आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि मस्कुलाइन है का फेमिनाइन है. राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके,
for this. Now, I think, is there any problem? Again, I'm asking to the students, is there any problem? Suyash, hmm, any problem? Saloni, No, sir, problem. okay, okay. No problem. ठीक है, let's go ahead with the other. Okay, one second now. I would like to take this. Yes, this is very, very important. Yes, this is called as four zilber. फोर zilber, ये इंपॉर्टेंट है. फोर zilber का मतलब है सफिक्स. सफिक्स, राइट. सफिक्स यानी क्या? स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में सफिक्स एंड प्रीफिक्स, ये हम लोग को आपको मालूम रहेगा व्हाट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स, राइट. सो सफिक्स उंड वर्ब एंड वर्ब, राइट. सो जैसे यू कैन लुक एट दिस, आब फारन, यानी आब इज सफिक्स ना, आब आगे लगाया है, फारन के पहले आब लगाया है. आन कॉमन, कॉमन इज द वर्ब लेकिन आन लगाया है. आइन स्टाइगन, तो स्टाइगन के पहले आइन लगाया. आउ स्टाइगन, यू कैन जस्ट सी. और जैसे स्पाजियरन गेहन इतना बड़ा था, तो स्पाजियरन इज, बाय द वे, स्पाजियरन इज अ फोर सिलेबल. स्पाजियरन इटसेल्फ इज अ सफिक्स. गेहन इज अ वर्ब, लेकिन एक्चुअली वर्ब क्या था? स्पाजियरन गेहन. एंड ऑल दिस वर्ब्स, दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज ट्रेन बार. ट्रेन बार का मतलब है सेपरेबल, सेपरेबल वर्ब. यू आर गोइंग टू सेपरेट दिस फोर सिलेबल और आपका एक्चुअली वर्ब, दोनों को, दोनों को आपस में, यानी एक को इधर कॉन्जुगेट करो, दूसरों को बाहर लगाओ. सो इट्स अ सेपरेबल वर्ब. एंड हाउ दिस सेपरेबल वर्ब यू आर गोइंग टू कॉन्जुगेट, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड अ सेंटेंस, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. तो उसके लिए हम लोग है ना, ये एक वापस हम लोग का ओरिजिनल जैसा हम लोग एक चार्ट लेते हैं, राइट. लेट्स सी दिस. ओके, सो जैसे एक वर्ब है इधर, अब फारन. Okay, now generally if you say only foreign, only foreign, foreign का मतलब है to travel, fine. up foreign का मतलब है to depart, to depart. So I cannot say I departed from my home. I am going for travel, right. And the train travels नहीं बोलते, the train departs, the train departs, right. ऐसा, तो दोनों का मतलब अलग अलग है. फारन एंड आप फारन. सो फारन किधर लगाने का, आप फारन कभी यूज करने का, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट और उसका मीनिंग ही अलग अलग है ना. ट्रैवल है ना, दोनों का जर्नी स्टार्ट ही है, लेकिन एक बोलता है एक पर्सन है और दूसरा थिंग है, राइट. दोनों में डिफरेंस है. सो हियर इफ आई लुक एट दिस, अगर मैं उसको कॉन्जुगेट करना चाहता हूँ, राइट, इज डू एर एस जी वीर वीर जी जी. हमेशा ध्यान में रखने का, जब भी आपको कौन सा भी वर्ब दिखता है ना, सो फर्स्ट ट्राई टू कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करो पहले. नाउ आई नो फार, ईएन निकाला, फार निकाला, सो वी नो इट, इट्स अगेन यू हैव टू, इट्स अ रूट, इट्स अ स्टेम ऑफ द वर्ब. ईएन निकाल के जो भी बचता है, इट इज कॉल्ड एज स्टेम ऑफ द वर्ब, राइट. एवरीबॉडी नोज दिस. नाउ अपना रूल तो सेम ही है, ई एस टी टी ई एन टी ई एन. बट नाउ these verbs are also called as a special verbs. special verbs बोलो उसको, irregular verbs बोलो. irregular, ये वर्ब्स इरेगुलर है. इरेगुलर रहते हैं तो क्या होता है मालूम है, डू एंड एरेजी फॉर्म डिफरेंट हो जाते हैं. डू एंड एरेजी फॉर्म डिफरेंट होते हैं. इश, फार, करेक्ट, आई एडेड ई. नाउ ओवर हियर, हियर फास्ट, दैट इज करेक्ट, लेकिन एक के ऊपर उमलाउट आता है, एक के ऊपर उमलाउट आएगा, राइट. सो फार्स नहीं कहते उसको, क्या बोलते हैं, फेयरस्ट. इश फार, डू फेयरस्ट. नाउ क्या चेंज हो गया है हम लोग का, ए का उमलाउट ये चेंज हो गया. व्हाई ए का उमलाउट चेंज हो गया, बिकॉज दिस वर्ब इज अ इरेगुलर वर्ब. नाउ ये इरेगुलर क्यों है, ऐसा क्यों है, सी इफ यू गो, जैसे बोला ना, इफ यू गो इनसाइड इनसाइड इनसाइड, then you will find out this thing. But now at this point
yes, we know it. Whatever verbs we are taking, जितना मैक्सिमम हम लोग वर्ब लेंगे उसका सबका वर्ब हम लोग कॉन्जुगेट करने का कोशिश करेंगे पहले, राइट. एंड वी विल फिक्स इन अवर माइंड, फॉरेन का मतलब, फॉरेन मीन्स टू ट्रैवल और इरेगुलर ही है, राइट. इरेगुलर का मतलब क्या है, डू एंड एयर इज द फॉर्म, दे डिफरेंट, दे डिफर. सो ई एस टी टी यानी एस टी तो लगाया मैंने, और फार का फार नहीं लिखने का, ए उमलाउट हो गया तो फेयर्स्ट हो गया. इधर भी फेयर्ट, फार नहीं रहेगा, फेयर्ट होगा, ए उमलाउट आएगा, ए उमलाउट, राइट. व्हाई? बिकॉज डू एंड एयर इज द फॉर्म, बोथ आर चेंज्ड, both are changed because this variable is irregular variable. ये आपको बात ध्यान में रखने का ही रखने का है. अदरवाइज ई एस टी टी ये रूल तो सेम ही है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीर फारन, वो तो सेम ही है. ईर, मुझे तो इधर टी लगाने का ना, ई एन टी ई एन, राइट, ये अपना रूल है. नाउ ओवर हियर ईर फॉर्म चेंज नहीं होगा, सो ईर का ईर फेरट नहीं है करेगा, ईर फार्ट, ईर फार्ट एंड झिझी फारन, झिझी फारन. ओके, अभी मैं जो बोलता हूँ प्लीज रिपीट आफ्टर मी. यू कैन अनम्यूट एंड प्लीज रिपीट आफ्टर मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका प्रोनाउंसिएशन मुझे थोड़ा सा सुनने के तो आना चाहिए, राइट. प्लीज रिपीट. इश फार, इश फार, डू फेयरस्ट, डू फेयर्स्ट, First. एरेजी फेयर्ट, एरेजी फेयर्स, First. वीर फारन, वीर फारन, Faran. ईर फार्ट, ईर फार, Faran. झिझी फारन. जीजी फारन. Faran. ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट, राइट. सो ऐसे ही हम लोग को कॉन्जुगेट करने का है. नाउ लुक एट द आप फारन. अभी देखो, अभी मजा आएगा. अभी क्या है, आप फारन, राइट. एंड जनरली व्हाट हैपेंस, दिस इज अ फोर जिल्ब. फोर जिल्ब का मतलब है सफिक्स है, तो हम लोग को आप डालने का है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस कितना भी बड़ा होने दो, वी नो इट. वर्ब कॉन्जुगेशन शुड बी एट द सेकंड प्लेस. वर्ब का कॉन्जुगेशन आपका सेकंड प्लेस तो हम लोग को छोड़ने का नहीं है. अभी बचता क्या है, फोर जिल्ब, right, like suffix that you have to put at the end of the sentence, that's it. So कैसे आएगा, conjugation will be same. इश फार अब, डू फेयर्स्ट अब, यानी आप तो आने वाला ही है लास्ट में, राइट. यानी conjugation, if I am saying conjugate आप फारन, so आप फारन का conjugation क्या है, इतना इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है. फारन का conjugate करो, आप इज फोर जिल्ब, आप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लगाओ, right. So somebody if he asks you orally, oral question किसने पूछा, आप फारन conjugate करो, you can say ish फार ab, do फेयर्स्ट ab, er is the फेरट ab, वीर फारन ab, ir फारट ab, zizi फारन ab. Fine, very simple. Let's now look at this particular thing. अभी देखो, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा. सी दिस, पहले ये देखो, फर्स्ट सी दिस, लुक एट दिस, जो मैं आपको सर्कल बना रहा हूँ वो पहले देखो. आप फारन जैसे बोला ना, डेर झूग, व्हाट इज झूग, झूग मीन्स ट्रेन. डेर झूग फेर्ट जेक्स उर फोन केवन आब, इट्स द एंड ऑफ द सेंटेंस. उसका मतलब क्या हो गया, द ट्रेन डिपार्ट्स एट 6 o'clock फ्रॉम केवन. केवन इज द नेम ऑफ द प्लेस, नेम ऑफ द सिटी, राइट. सो देखो कैसे बोला ना मैंने कि ये फॉरेन वर्ब, ये तो आपको कॉन्जुगेट तो करने का ही है, बट अब यू हैव टू पुट इट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. नाउ लुक एट दिस वेरिएबल अनकॉमन. अनकॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, एंड वी नो इट. इज कोमर, डू कोम्स्ट, एर इज कोम्ट, वीर कोमन, ईर कोम्ट, झिझी कोमन. ये तो इरेगुलर वर्ब नहीं है कॉमन. सो कॉमन तो कॉमन, इज कोमर, डू कोम्स्ट, कोम्स्ट ही है, ई एस टी टी ई एन टी ई एन, रेगुलर वर्ब है, राइट. तो इसमें कॉमन का क्योमा ऐसा कुछ नहीं है. आर यू गेटिंग इट? जो वर्ब हम लोग ले रहे हैं उसके बारे में ही सोचो. फॉरेन इज अ इरेगुलर वर्ब. तो जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो, राइट. अनकॉमन. सो यू कैन जस्ट सी, यू कैन लुक एट दिस नाउ dialogues or like that, conversation. Der Zug fährt von Köln ab. The train travels or departs from Köln. Er kommt 12 Uhr in Frankfurt an.
अगर ये आन में भूल गया डालने का तो ये क्या हो गया, ही कम्स। और अनकॉमन का मतलब है टू अराइव, टू अराइव। दोनों में कितना फर्क है देखो। अनकॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, आप फॉरन हो गया, राइट। दोनों का मीनिंग समझ के ले लो। कॉमन, कॉमन मीन्स टू कम, दैट इज फाइन, एंड अनकॉमन मीन्स टू अराइव, राइट। द ट्रेन कम्स नहीं, द ट्रेन अराइव्स एट द स्टेशन, ऐसा हम लोग बोलते हैं, राइट। और लेट्स से आई कम, राइट, टू द, आई अराइव, अराइव मीन्स व्हाट, किधर प्लेस से आ रहे हैं ना तुम लोग, यू आर कमिंग, you are arriving in that particular location, in that city, like that. So er kommt Zulf Ur at 12 o'clock, right, there Frankfurt, in Frankfurt an. Der Herr, the Mister, steigt in Keon ein. Now einsteigen, einsteigen means to get in, ट्रेन के अंदर घुसा, to einsteigen to get in, and aussteigen to get down. Einsteigen, aussteigen. ध्यान में रखो। Abfahren, ankommen. Abfahren means to depart, ankommen means to arrive. Einsteigen means to get in, aussteigen means to get out, get down, you can say, right? So here, there, here, steig in Keon ein. If I am saying, right, Sakshi steigt in Churchgate ein, means Sakshi gets in the Churchgate, right? And sie steigt in Vasai House, she get down in Vasai, in she get down in Vasai, right? वो वसई में उतरी, चर्चगेट में चढ़ी और वसई में उतरी, like that, okay? So you can talk like that, okay? So these are the verbs which are very, very important, okay? Now there is some exercise. See the exercise. You can do this exercise. Let's see. I will just make it one by one. डेयर जूक, अभी इधर लास्ट में डैश ने लगा है, उसका मतलब है लास्ट में कुछ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने अभी देखा लास्ट में सेपरेबल फोर सिलेबल तो आना ही चाहिए, राइट। जो क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, बिल्डन जी डी वेब फॉर्मन, फॉर्म द वर्ब sentences. Der Zug fährt 9 Punkt, Punkt, 9 Punkt 44 Uhr in Keron ab, राइट। ये हमेशा ध्यान में रखो। सी दे विल स्पीक वेरी फास्ट इवन दो देयर प्रोनाउंसिएशन इज वेरी करेक्ट, हाँ, राइट। प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अच्छे रहते हैं, ऐसा यू नो, दे आर नॉट एनी वर्ब और एनीथिंग इज नॉट साइलेंट, परफेक्टली बोलते हैं। लेकिन फास्ट बोलते तो उनका लास्ट में आप, आन, ये सब फटाफट आता ही है। हम लोग को अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, अरे हाँ आप डालो, आन डालो, तब तक सामने वाला चला भी जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। So mein Freund, see, mein Freund steigt schon in Bonn aus. My friend gets down, already gets down in Bonn. वो बता रहा है, right? मेरा friend बोन में अभी कभी उतरा भी है, right? Now here देखो, steigen Sie ein, get in, अरे अंदर आ जाओ, ऐसा, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। Just see how you are going to conjugate. Steigen Sie, जी यानी क्या, पोलाइट फॉर्म ऑफ यू, एंड वी नो हाउ टू कॉन्जुगेट। तो कैसे आएगा, स्टाइगन जी, स्टाइगन का एस कैपिटल आएगा बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद द सेंटेंस। सो स्टाइगन जी आइन बाद में आएगा, तो स्टाइगन जी आइन, पटक से में बोला, क्या बोला, स्टाइगन जी आइन, गेट इन, राइट, अरे अंदर आ जा, ऐसा। डेयर जूग फेयर पुंकलिश आब, पुंकलिश का मतलब है पंक्चुअली, ट्रेन अभी छूटने वाला है, द ट्रेन डिपार्ट्स पंक्चुअली, गेट इन, राइट, स्टाइगन सी आइन, फटाफट आ जाओ अंदर, ऐसा, राइट। ऐसा आप लोग जैसे हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं, जस्ट गेट इन, द ट्रेन इज गोइंग टू डिपार्ट, द ट्रेन डिपार्ट्स पंक्चुअली, राइट टाइम पे वो निकलेगी, अंदर आ जाओ, ऐसा। नाउ नेक्स्ट कैन बी व्हाट, फेयर्ड फ्रॉम एयर auch nach Frankfurt. Now here there is no abfahren, there is only fahren, so it's fine. Fährt Frau Meyer, Frau Meyer यानी Mrs. Meyer. Does Mrs. Meyer also travel to Frankfurt? auch यानी also, nach यानी to, तो फेयर फार नहीं आएगा ना, आप फारन तो आएगा ही नहीं। फ्राउ मेयर डिपार्ट कैसे होगी, फ्राउ मेयर तो ट्रैवल कर रही है, राइट, ऐसा। सो लाइक दिस यू जस्ट
गो ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज. ये 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट बराबर से लिखो, सॉल्व करो एक्सरसाइज को, राइट. ट्राई टू ट्रांसलेट इट फ्रॉम योर करेक्ट इंग्लिश, नॉट लाइक जर्मन इंग्लिश. आपके करेक्ट इंग्लिश में ट्राई टू ट्रांसलेट इट. इतना भी करेक्ट नहीं चाहिए कि भाई आपने आपका खुद का ओरिजिनल सेंटेंस लिखा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट. इधर जो बोला है वैसे ही ट्रांसलेट करने का है. थोड़ा बहुत है ना, इंग्लिश करेक्ट बोलता हूँ तभी इंग्लिश करेक्ट है ना, थोड़ा बहुत करेक्ट आना चाहिए, राइट. तो इट डजंट मीन दैट कि पूरा मतलब ही चेंज हो गया. ये प्रेजेंट टेंस में बोलता है और आप पास्ट टेंस में कन्वर्जन करते हो, ट्रांसलेट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, राइट. सो ट्राई टू fix it from your point of view, right. So I think you got the meaning of this four zilba, right. Today I have to take these very important two things. The first one is the exercise based on the prepositions meet dative, preposition meet accusative. So preposition meet dative and preposition meet accusative. Please solve this. दोनों एक्सरसाइज बराबर देखो. And is very important called as four zilba und verb, right. Now for especially for Sakshi, this is your the starting point for your G2 or A2 exam, I can say. फॉर हाँ A2 सर. एक्झाम, हा A2 एक्झाम साठी हे ग्रामरची तुझी चांगली सुरुवात आहे. अँड फॉर ऑल अदर स्टुडंट्स, सी तुम्ही तर आता G2 आणि आता आपण पण पुढे पुढे जातोय. सो इट डझंट मीन काय की आपण A1 तर एक्झाम दिलीच नाही, मॅक्सिमॉलॉजी तुम्ही कधीही देऊ शकतात. A1 एक्झाम तुम्ही कधीही दे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रिपेअर्ड विथ द ग्रॅमॅटिक. ग्रॅमॅटिक मीन्स ग्रामर. ग्रामरने तुम्ही ऑलरेडी स्ट्रॉंग झालेला आहात, right. So you can if you have got any kind of problem, you talk with the Sakshi, because Sakshi has appeared A1 examination, right. Sakshi सांगेल तुम्हाला की बाबा A1 ला काहीच डिफिकल्ट एवढं नाहीये, राईट. तुम्ही आरामात क्लिअर होऊ शकता. बट नाउ अगेन वी आर वेटिंग फॉर द रिझल्ट ऑफ Sakshi. Let's hope Sakshi will clear A1 and she is going to appear for A2 as well, and she is planning to complete her A1, A2, B1, B2 up to her last semester. सर A1, A2, B1, B2 जर का तुम्ही केलं, so again I am telling you, all my dear students, that you will have the better chance to go for MS in Germany, as well as you will get the 5 years of visa, right, to work in Germany, right. But you should clear at least A1, A2, B1, B2. A1, A2 केलं तर तुम्हाला 100% you will get like scholarship, you can able to learn. But like the core engineering means what? The highest power of engineering is there in Germany, that all of us knows, right. ऑटोमोबाईल म्हणा तुम्ही, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी मध्ये जर्मनी इज नंबर 3. IoT, like IoT technology, Internet of Things, whatever we are studying it over here, originality, research work, a lot of research work is going on in Germany. So you student has got a bright career in Germany. Even in India also, there are a lot of companies are collaborated with the Germany. So if you know this A1, A2, B1, B2 darka kelat, plus you are engineer, definitely you are outstanding, right. You will get definitely very good job, right. So this is starting point A. But whatever I am telling you exercise, please do this exercise, right. Otherwise what is going to happen, I am only solving the exercise, repetition, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःला काहीच कळणार नाही, right. 1 second.